Hello and welcome. Is my voice clear and audible? Yes, you are audible. Okay, thank you so much. Okay, let us sit back comfortably. I, the soul, have come into this bodily costume to play my part with other souls. All souls that have come into different relationships with me, I have met them before. When we met last time, an account was started. Even though we changed our bodily costume, that account continues. All those souls are around me once again in different roles and relationships. Everything that is happening is absolutely fair and accurate. Never does my mind say, this is not fair. It is fair according to the account that was shared between me and the other souls. That account is continued. Now my attention is only towards my present karma. However, the past was, it is no longer in my control. But my present karma, my thoughts, words, and actions is deciding my future. I take care irrespective of what others do. My karma is clean, pure, and beautiful. Om Shanti. Okay, thank you so much for joining. We'll begin with the session now. I'll just share the screen with you. Okay, so is the screen visible to everyone? Yes, you are perfectly audible and visible. All right, thank you so much. Okay, so we are starting with the chapter Reaching the Child Within, and this is page 218 on the PDF. ओके तो सुरेश ओब्रॉय जी कह रहे हैं I am not able to consistently remember that the other person is a soul full of love just like me. सिस्टर शिवानी कहते हैं
We cannot consciously remember it all day that we are a soul and love is our original quality. It does not work like that. There are two ways of going about it. First, if we remember that we are a soul, love automatically radiates from us. The other option is if our interaction is based on love, we automatically become soul conscious. Interacting with love means our every thought is clean. तो यहाँ पे सुरेश ओबरॉय जी पूछ रहे हैं कि मैं हर वक्त या इस अवेयरनेस में नहीं रहता, मुझे याद नहीं रहता कि मैं एक सोल हूँ और आई एम फुल ऑफ लव, यू नो। तो हर एक जो जिससे भी मैं मिलता हूँ वो भी फुल ऑफ लव है। तो सिस्टर शिवानी कह रहे हैं कि ये हम कॉन्शियसली पूरा दिन अगर याद नहीं करते तो दो दो वेज हैं, टू रिमेम्बर। अगर हम हर वक्त याद करते रहें कि वी आर अ सोल, वी आर नॉट दिस बॉडी, नॉट दिस माइंड, नॉट दीज थॉट्स, वी आर जस्ट अ सोल, तो लव ऑटोमेटिकली रेडिएट होगा। और जो दूसरा ऑप्शन है, जब हम हर किसी रिलेशन में हर किसी से जब मिलते हैं, जब हमारे अंदर प्यार होगा, व्हेन वी मीट एवरीबडी विथ लव, देन वी आर ऑटोमेटिकली सोल कॉन्शियस। तो जब हम हर एक के साथ इंटरेक्शन में हमारा लव होगा, हमारा एवरी थॉट क्लीन होगा, तो हम ऑटोमेटिकली सोल कॉन्शियस ही हैं। तो सुरेश ओबरॉय जी कह रहे हैं, whenever I interact with a child, only love radiates from me. There's nothing else. तो कह रहे हैं सुरेश ओबरॉय जी कि जब भी मैं छोटे बच्चे के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, ये तो हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कि जब बच्चों के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं तो खाली लव रेडिएट होता है। तो सिस्टर शिवानी कह रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन बिहाइंड इट? Maybe because one cannot have a clash of ideas with a child. तो सुरेश ओबरॉय जी कह रहे हैं कि हो सकता है क्योंकि हमारी कोई आइडियाज क्लैश नहीं हो सकते छोटे बच्चों के साथ। तो सिस्टर शिवानी कहते हैं, वी इंटरैक्ट लविंगली विद अ चाइल्ड बिकॉज ही ऑलवेज रेडिएट्स द एनर्जी ऑफ लव। A small child is neither judgmental nor critical of us. He does not see our mistakes or feel hurt or angry by anything we do. तो हम क्यों बच्चों के साथ इतना हमारे हमें इतना प्यार क्यों फील होता है? बिकॉज जो बच्चे होते हैं वो हमेशा ही प्यार की एनर्जी में होते हैं। वो उनके पास कोई जजमेंट्स नहीं होते, वो कोई हमारी गलतियां नहीं देखते, ना वो गुस्सा होते हैं, ना उनमें हर्ट की फीलिंग्स होती हैं। वो सब इन सब चीज़ों के परे होते हैं। दे आर जस्ट प्योर, फुल ऑफ लव एंड दे रेडिएट ओनली लव। सुरेश ओबरॉय जी कह रहे हैं, अ चाइल्ड ऑल्सो लुक्स एट एवरी वन इक्वली. ही डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन अ थीफ एंड अ सेंट, never labels anyone as rich or poor, good or bad. He just loves unconditionally. तो बच्चों का प्यार क्या होता है? बच्चों को तो नहीं पता कि ये रिच है, ये पुअर है, ये अच्छा है, ये बुरा है। उनको तो इन सब चीज़ों का पता ही नहीं है। वो तो जस्ट दे जस्ट लव, अनकंडीशनल लव होता है बच्चों का। जो सिस्टर शिवानी कहते हैं, अ चाइल्ड डज नॉट लेबल अदर्स और रिमेंबर देयर फॉल्ट्स. He simply does not know the concept of judging them, even in the subtle sense, and is free from feelings of hurt, comparison, and criticism. मतलब छोटे बच्चों को तो पता ही नहीं कि क्या जज करना है। तो वो तो दे आर फ्री फ्रॉम एनी फीलिंग ऑफ हर्ट या कंपैरिजन या क्रिटिसिज्म। दे डोंट नो। As he has none of these blockages, love naturally radiates from him. This then automatically draws love from others. This is the formula for being love. A child makes no effort to radiate love to others. Love naturally flows through him. तो ये क्यों होता है कि बच्चों में इतना प्यार नेचुरली फ्लो करता है? क्योंकि उनमें वो कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, कोई हर्ट नहीं, कंपैरिजन नहीं, क्रिटिसिज्म नहीं, इन सब चीज़ों से परे है। क्योंकि ये ब्लॉकेजेस नहीं है तो लव नेचुरली रेडिएट करता है। तो हमारे लिए भी ये लर्निंग है कि जितना हम अपने आप को इन सब ब्लॉकेजेस से
जजमेंट, क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन और डिपेंडेंसीज, अटैचमेंट, ये सब चीज़ों से जब हम अपने आप को हटाते रहेंगे, वो लव ऑटोमेटिकली रेडिएट करेगा। बट आई कैनॉट गो बैक टू बिकमिंग अ चाइल्ड। सुरेश ओबरॉय जी कह रहे हैं कि मैं दोबारा बच्चा नहीं बन सकता। सिस्टर शिवानी कहते हैं यस यू कैन। द चाइल्ड इज एबल टू रेडिएट लव नेचुरली बिकॉज ही इज फ्री फ्रॉम इंटरनल blockages and labels. If we also rid ourselves of these negative tendencies, our state too will come closer to a child's. तो वही सिस्टर शिवानी कहते हैं कि जितना हम अपने आप को इन सब ब्लॉकेजेस से हटाते जाएंगे, उतना हम बच्चे के जैसे प्योर, विल जस्ट बिकम लाइक अ चाइल्ड, प्योर एंड इनोसेंट, और लव नेचुरली रेडिएट करेगा फिर हमसे। Remember, we do not have to work towards creating the flow of love. All we need to do is to remove our internal blockages so that the natural flow is restored. This is similar to the fact that blood flows in our body naturally. But health problems occur when blockages in the arteries obstruct this flow. तो सिस्टर शिवानी कहते हैं कि हमें लव को क्रिएट करने में नहीं वर्क करना है, हमें अपनी एनर्जी, सारे जो ब्लॉकेजेस हैं उसको हटाने में वर्क करना है। जैसे हमारे हेल्थ में भी जब जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि आर्टरीज में जब ब्लॉकेजेस होते हैं तो इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द फ्लो। तो हमें भी ब्लॉकेजेस हटाने हैं, जो हमारे इंटरनल ब्लॉकेजेस हैं, जिसमें एंगर है, कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म, जजमेंट्स, ये सब जो हमने ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हुए हैं। पीपल से दैट अ चाइल्ड इज द इमेज ऑफ गॉड. This is because the child is pure. He has no acquired layers or sense of ego, so his energy field is pure and magnetic. Even if an adult enters this energy field with feelings of ego, hurt, and criticism and other labels, he starts to receive pure vibrations of love from the child. This brings out his original quality of love effortlessly. तो फिर वही बच्चे क्यों कहते हैं ना, हम क्यों कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप है? क्योंकि बच्चों में वो प्योरिटी है, वो इनोसेंस है, उनमें कोई वो लेयर्स नहीं है ईगो के या जजमेंट के, कुछ भी नहीं। तभी जब कोई अडल्ट्स ना, जब हम बड़े भी बच्चों के साथ सामने जाते हैं, अगर हमारे अंदर जो ईगो, हर्ट, ये सब क्रिटिसिज्म की फीलिंग्स भरी भी पड़ी है, बट व्हेन वी स्टार्ट रिसीविंग द प्योर वाइब्रेशंस ऑफ द चाइल्ड, बच्चों की जब वो प्योरिटी हमारे सामने आती है, तो इसमें हमारा भी जो ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ लव है वो बाहर आता है। In this case, a small child is influencing an older person. Yes, why not? It is the impact of one soul on another. If elders can influence children, it can also happen the other way round. तो सुरेश ओबरॉय जी कह रहे हैं कि इसका मतलब छोटा बच्चा एक बड़े बच्चे बड़े इंसान को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो सिस्टर शिवानी कहते हैं क्यों नहीं, क्योंकि ये इम्पैक्ट एक सोल का दूसरे पे आता है। अगर हम बड़े बच्चों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो बच्चे भी तो हमें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो सुरेश ओबरॉय जी कह रहे हैं माई सन एंड सन इन लॉ से दैट जस्ट बीइंग विद द लिटिल वन रिफ्रेशेस देम आफ्टर अ हार्ड डे. Elders forget their tiredness and return to their normal state in the company of a child. तो ये जैसे होता है ना, वो सुरेश ओबरॉय जी भी कह रहे हैं, उनका बेटा और उनके सन इन लॉ कहते हैं कि बस बच्चों के साथ जब रहते हैं तो जब टायर्ड होके घर पे आते हैं, देन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो सारी टायर्डनेस दूर हो जाती है, सारी जो टेंशन्स हैं, थकावट है, सब गायब हो जाती है छोटे बच्चों के साथ। Elders experience their own purity in the company of a child. At workplace, there is only interaction of egos, of position with position, senior with junior, employer with employee, and money with money. So, elders usually operate in a body conscious mode all day and also receive criticism and other negative vibrations.
तो सिस्टर शिवानी कहते हैं बड़े अपनी अपनी प्योरिटी एक्सपीरियंस करते हैं बच्चों के कंपनी में। तो व्हेन जब वो काम पे होते हैं तो क्या होता है, सिर्फ ईगोज का क्लैश होता है। क्योंकि एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉई है, एक जूनियर है, एक सीनियर है। तो सारा दिन उनका मतलब बड़ों के साथ वही इंटरेक्शन है, काम का। वही कुछ काम के स्ट्रेस को लेके, कभी कुछ। तो पूरा दिन वो क्या होते हैं, बॉडी कॉन्शियस मोड में होते हैं। विथ चिल्ड्रन दे एक्सपीरियंस इंटरैक्शन ऑफ लव विथ लव। तो बच्चों के साथ वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, लव। तो उनके अपने अंदर की भी जो लव है वो भी निखर के आता है। तो व्हाट आर इट इज एन इंटरैक्शन ऑफ लव विथ लव। When we are in a child's company, we too become like him. This proves that the original quality of love is the same for both. तो जब हम बच्चों के साथ होते हैं हम भी उनकी तरह ही हो जाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि ओरिजिनल क्वालिटी हमारी लव ही है, जो दोनों में सेम है, एक बच्चे में भी और एक एल्डर पर्सन में भी। सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं वी डोंट फील टायर्ड व्हेन वी स्टे इन आवर ओरिजिनल क्वालिटी। तो जब हम खुश होते हैं तो वी डोंट फील टायर्ड, हम थकते थोड़ी हैं जब हम खुश हैं और इतना अंदर से लव फील कर रहे हैं। बिकॉज द सोल इज ओरिजिनली पावरफुल, वी हैव कॉम्प्लिकेटेड आवर रिलेशनशिप्स बाय इंटरैक्टिंग थ्रू आवर acquired लेयर्स। क्योंकि हम क्यों टायर्डनेस नहीं फील करते, बिकॉज दैट इज वॉट आवर ओरिजिनल नेचर इज। द सोल इज ओरिजिनली पावरफुल। बट कॉम्प्लिकेशंस आती है हमारे रिलेशनशिप्स में, जब फिर ओवर थिंकिंग आ जाती है, इसने ऐसे क्यों किया, उसने वैसे क्यों किया, फिर हर्ट, जेलेसी, ये सब जब इमोशंस हमारे अंदर चलते हैं, इट मेक्स दे मेक अस रेस्टलेस, टायर्डनेस, रेस्टलेस, ये सब ओवर थिंकिंग, ये सब उसकी वजह से आते हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस कर रखी है हमने। तो सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं इन अ प्रीवियस कॉन्वर्सेशन यू हैड मेंशन्ड दैट वी कैन रिचार्ज आवर सोल बैटरी by connecting to a fully charged battery. A child is fully charged. He does not lose anything by giving to others, as love only grows. तो सुरेश ओबरॉय जी कह रहे हैं कि जैसे सिस्टर शिवानी ने पहले मेंशन किया कि हमारी सोल बैटरी किसी के साथ जब फुली चार्ज्ड बैटरी के साथ हम कनेक्ट करेंगे तो हमारी बैटरी भी फुली चार्ज्ड होती है। तो बच्चे दे आर फुली चार्ज्ड, उनका बैटरी घटती नहीं है लव की। वो लूज नहीं करते, क्योंकि वो जब देते हैं तो हम भी जब देते हैं प्यार तो बढ़ता है, कम नहीं होता। When a child radiates love, it triggers the energy of love that is already present inside us. Just like if I create a negative vibration for you, it will also hit something negative inside you. तो बच्चों की जो प्यार अंदर से होता है वो हमारे अंदर के भी लव वाले फीलिंग्स को ट्रिगर करता है। जैसे किसी के लिए अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो उनके माइंड में भी हमारे लिए नेगेटिव आता है। तो इन द सेम वे द इमोशन ट्रिगर्स इटसेल्फ। कैन यू एक्सप्लेन दिस, सुरेश ओबरॉय जी पूछ रहे हैं। इफ आई एम थिंकिंग नेगेटिवली अबाउट यू इट विल रीच यू। You do have a choice of response, but the probability of my thought touching a similar negative chord inside you is very high, especially if you are living in the unaware mode, where you are not choosing your thoughts consciously. तो सिस्टर शिवानी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब हम किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं वो उनको पहुंचता ज़रूर है, बट अगर वो कॉन्शियस नहीं है, अगर वो अपने थॉट्स को चूज नहीं करते, अगर वो अवेयरनेस के मोड में नहीं है तो वो बहुत जल्दी उनको हिट करेगा और हो सकता है वो रिस्पॉन्स भी उनसे आए। वो भी फिर एक नेगेटिव, उनके अंदर की भी नेगेटिविटी एकदम से बाहर आ सकती है इफ दे आर नॉट अवेयर। बट इफ दे आर चूजिंग देयर थॉट्स कॉन्शियसली, हो सकता है वो रिएक्ट ना करे, बट वो नेगेटिविटी उन तक पहुंचती जरूर है। तो सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं इफ आई एम लिविंग इन द अवेयर मोड आई कैन चूज नॉट टू एक्सेप्ट योर नेगेटिव वाइब्रेशंस
or can convert them into positive. तो सिस्टर शिवानी कहते हैं yes, being aware means that we are able to change our negative thought into positive simply by self-checking, by telling ourselves, I need not think in this manner. When a negative thought occurs to us, we do not know if it is our own creation or it has been triggered by someone else's negative thought. The important thing is that we have the power to change it. तो सुरेश ओबरॉय जी कह रहे हैं कि अगर मैं अवेयर मोड में हूँ, अगर मेरे अंदर वो अवेयरनेस है अपने आप के थॉट्स को चेक करने की, तो मैं अपने आप से कॉन्शियसली वो नेगेटिव वाइब्रेशंस को कन्वर्ट कर सकता हूँ पॉजिटिव में। तो वही सिस्टर शिवानी कहते हैं कि बीइंग अवेयर का मतलब है कि हम जो नेगेटिव थॉट है उनको पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं सेल्फ चेकिंग से। जब हमारी तरफ एक नेगेटिव जैसे ब्लैक बॉल से आ रही है, तो वो हम जब अपने आप में इतने अवेयर हैं तो वी कैन चूज व्हाट वी वांट टू थ्रो बैक। यू नो तो अगर वो नेगेटिविटी हमें हमारे पास आ रही है, हम ये चूज कर सकते हैं कि नहीं, मैंने पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना है, मैंने ऐसे सोचना है। तो जो क्योंकि वो किसी और, हमें नहीं पता कि वो थॉट क्यों आ रहा है, किसी और के नेगेटिव थॉट की वजह से भी आ सकता है, हमारे अंदर वो ट्रिगर होता है नेगेटिविटी। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हमें पता हो कि वी हैव द पावर टू चेंज। हमारे पास वो पावर है अपने थॉट्स खुद क्रिएट करने का, अपने अंदर खुद वो चेंज लाने का, दूसरे की नेगेटिव वाइब्रेशंस का हम पे न असर ना हो। In general, others reciprocate the energy we send them. Similarly, the vibrations of a child trigger the sanskars of love and purity within us. The experience is similar to meeting a saint. तो द जो हमारे पास एनर्जी आती है वही हम दोबारा सेंड करते हैं। तो जैसे बच्चों की प्यार वाली जो हमारे पास आती है वाइब्रेशंस, तो वही दैट वी ऑल्सो दैट ट्रिगर्स आर पॉजिटिव एंड लविंग फीलिंग्स एज वेल, जो हमारी ओरिजिनल नेचर है। सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं वी एक्सपीरियंस द सेम काम इन प्लेसेस ऑफ वर्शिप। तो जैसे हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं, हम यही कामनेस फील करते हैं, उधर की वाइब्रेशंस और ऑरा में ही वो पॉजिटिविटी, वो प्योरिटी, वो लव होता है रेडिएट। तो सिस्टर शिवानी कहते हैं व्हेन वी गो टू अ टेम्पल और मीट अ प्योर सोल, we do experience peace because of the collective vibration of that place. But the fact is that such a place or person only trigger the peace already present within us. So they are only giving us the opportunity to experience it. तो सिस्टर शिवानी क्या कहते हैं, हम वो वाइब्रेशन फील करते हैं जब हम टेम्पल्स में जाते हैं पीस की। बट सच बात है कि द फैक्ट इज दैट वो हमारे अंदर के जो ओरिजिनली पीस का जो संस्कार है, प्योरिटी लव का संस्कार है, वो ट्रिगर करता है खाली उसको। दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन अस। That is why we feel like going to such people or places frequently. We think we experience peace only in their presence, but when we are not around them, we get entangled in the same old vibrations. But the truth is that they are only a stimulus for us to experience our original quality of peace. तो हमारा दिल करता है हम जैसे हम किसी से मिले जो बहुत प्योर है, जैसे छोटे बच्चों से या किसी और से भी जो बहुत जैसे कहते हैं स्पिरिचुअली एलिवेटेड है, जिसके अंदर वो प्यार प्योरिटी बहुत है, तो उनसे मिलने का हमारा मन करता है। वी वांट टू बी अराउंड सच पीपल, क्योंकि वो उनके वाइब्रेशंस, उनके एनर्जी, उनके ऑरा में ही वो लव प्योरिटी होती है। वे वी लाइक टू गो। बट एक्चुअली सिस्टर शिवानी यही समझा रहे हैं कि वो करते कुछ नहीं है, वो हमारे अंदर की ही पीस प्योरिटी लव को ट्रिगर करते हैं, जो ऑलरेडी हमारे अंदर है, दैट इज आवर ओरिजिनल क्वालिटी। दे आर जस्ट अ स्टिम्युलस। The opposite of this is also true. If someone sends us negative vibrations, those will trigger something similar in us.
if that negativity is already present inside us. तो जैसे हमारे अंदर लव ट्रिगर होता है, वैसे अगर हम किसी नेगेटिव किसी के पास जाएं जिनके अंदर नेगेटिविटी चल रही है, जो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, वो उनकी जो नेगेटिविटी होती है वो हमारे अंदर की भी नेगेटिविटी को ट्रिगर करती है। तो सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं, व्हाट इफ आई हैव अ नेगेटिव ट्रेट इन मी बट डू नॉट वांट इट टू बी ट्रिगर्ड, कैन आई कंट्रोल दैट? तो सुरेश ओबरॉय जी पूछते हैं कि अगर मेरे अंदर ही कुछ नेगेटिव है पर मैं उसको ट्रिगर नहीं करना चाहता, तो मैं कैसे कंट्रोल करूं? तो सिस्टर शिवानी कहते हैं, यू कैन बी अवेयर ऑफ इट एंड चेंज इट। फॉर एग्जाम्पल, when we meet saints, their purity triggers our purity, but our impurity does not influence them. This is because through years of practice, they have cleansed themselves of their acquired layers to quite an extent. तो सिस्टर शिवानी कहते हैं, जब हम अवेयर हैं कि हमारे अंदर ये नेगेटिविटी है, हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम किसी सेंट से मिलते हैं, प्योर सोल से मिलते हैं, तो उनके अंदर की जो प्योरिटी है वो हमारे अंदर भी ट्रिगर करती है प्योरिटी को। पर हमारे अंदर जो इम्प्योरिटी है उनसे वो अफेक्ट नहीं होते, इन्फ्लुएंस नहीं होते, क्योंकि उनके इतने सालों की प्रैक्टिस है, उन्होंने अपने आप की क्लेंजिंग की है। इन्होंने इतने सालों से सोल कॉन्शियस रहने की प्रैक्टिस की है कि हमारे अंदर की कोई भी नेगेटिविटी उनको इन्फ्लुएंस नहीं करती। सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं, कैन वी इग्नाइट आवर ओरिजिनल संस्कार्स विदाउट गोइंग टू द टेम्पल, मीटिंग सेंट्स और बीइंग इन द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन? तो पूछ रहे हैं कि क्या हम अपने अंदर के जो ओरिजिनल संस्कार्स हैं उनको कैसे इमर्ज करें, अगर हम टेम्पल ना जाएं और प्योर सोल सेंट्स बच्चों से ना मिले, तो कैसे कर सकते हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? तो सिस्टर शिवानी कहते हैं, ऑफ कोर्स, इफ वी चेक थ्रू आउट द डे, आवर ओरिजिनल संस्कार्स आर अवेकन सो मेनी टाइम्स. It is not that we live in a negative state all day. We often experience such pure love. Sometimes we see a stranger and go out of our way to help him. It is because our original quality is to give others. तो सिस्टर शिवानी कहते हैं कि हमें जरूरत नहीं है, मतलब बिना टेम्पल जाए या बच्चों के साथ रहे भी हम ये कर सकते हैं, जब हम थ्रू आउट द डे अपने ओरिजिनल संस्कार पर चेक करें, क्योंकि हम पूरा दिन तो नेगेटिविटी में नहीं होते हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं वो प्योरिटी की फीलिंग, वो लव की फीलिंग, जब हम किसी कोई स्ट्रेंजर को हेल्प करते हैं, या कंपैशन की फीलिंग आती है हमारे अंदर, क्योंकि वही हमारी ओरिजिनल क्वालिटी है, देना। तो सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं, सम टाइम बैक आई सॉ किड्स प्लेइंग अराउंड, आई सेंट चॉकलेट्स फॉर ऑल ऑफ देम। सिस्टर शिवानी कहते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स वी थिंक, व्हाई शुड आई कोऑपरेट विथ हिम व्हेन ही डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर मी? तो होता क्या है, जब हम बच्चों को देखते हैं, सुरेश ओबरॉय जी जैसे कह रहे हैं ना, हम चॉकलेट्स भेजते हैं उन्हें, बट हमारे जो अपने पर्सनल, हमारे जो क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं, उसमें हम सोचते हैं कि हम कितना इनके साथ कोऑपरेट करें, हमेशा हम ही दें, हमेशा हम ही कोऑपरेट करें, ऐसे क्यों? Just like you randomly distributed chocolates to children, knowing very well that you will not get anything in return, we all have to distribute sweetness to others. We must do things for others without bothering about whether they will return the favor, whether we will meet whether we will meet them again or not. Even if we get negativity in return, we have to distribute sweetness to others. तो वही सिस्टर शिवानी कहते हैं कि जब हम रैंडमली चॉकलेट्स दे रहे हैं, हम नहीं जानते, हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है बच्चों से कि हमें कुछ देंगे वो रिटर्न में। तो वैसे ही हमें सबके साथ करना है, हमें बस अपना देना है, अपना प्यार देना है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। तो सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं, once while coming out of a restaurant, I tipped the doorman. A gentleman who was with me disapproved of it, saying it made no sense to tip someone who I would probably never see again.
He said, I should do it only at places I visited frequently because I would get respect in return. तो सुरेश ओबरॉय जी कह रहे हैं कि एक बार रेस्टोरेंट से निकलने के बाद उन्होंने टिप दिया, जो डोरमैन था। तो कोई और थे, वो उन्होंने कहा कि आप ये क्यों कर रहे हो, इनको दे के कोई पॉइंट नहीं है। उनको देना चाहिए जहाँ हम हमारा रोज का जाना होता है, तो हमें रिस्पेक्ट भी मिलती है फिर। तो सिस्टर शिवानी कहते हैं, इन सच अ केस द एक्ट ऑफ गिविंग इज एक्चुअली अ मीन्स ऑफ टेकिंग। People tip the doorman or waiter so that when they visit the place next time, the staff takes better care of them, talks to them with greater regard, and wishes them in front of others. Their intention is to receive it all in return for a meager tip. It is their way of buying regard. So actually, they are not giving anything at all. तो वही सिस्टर शिवानी समझा रहे हैं कि अगर हम जब हम दें तो हमारे उसमें लेने की भावना भी हो, कि जैसे हम टिप कर रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि वो हमें रिस्पेक्ट दे, हमें रिगार्ड दे। तो उसलिए हम उनको टिप देते हैं कि हर बार हम वहाँ जाएं तो वो दे ओपन द डोर फॉर अस, और हमें जो भी है सलाम करें या जो भी रिगार्ड दे। तो हम एक्चुअली उनको कुछ दे नहीं रहे ना, हमारे देने में लेना ही है। तो सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं, इफ वी कैन कैलकुलेट एवरीथिंग सो माइन्यूटली, व्हाई डोंट वी यूज आवर फैकल्टीज टू डेवलप आवर स्पिरिचुअल साइड। वो इस सुरेश ओबरॉय जी पूछते हैं, जब हम इतना कुछ कैलकुलेट कर पाते हैं तो हम अपने माइंड इंटेलेक्ट को क्यों नहीं यूज करते स्पिरिचुअलिटी के साइड में जाने के लिए। तो सिस्टर शिवानी कहते हैं, वी यूजली कैलकुलेट दैट वी मस्ट रिसीव फ्रॉम अदर्स, वी आर अवेयर ऑफ व्हाट इट टेक्स टू गेट लव, रिस्पेक्ट एंड केयर फ्रॉम देम। नाउ ऑल वी नीड टू डू इज टू शिफ्ट दिस अवेयरनेस, think what we should do in order to give love, respect and care। तो हम ये सिस्टर शिवानी वो ये कहते हैं कि हम यूजली ये कैलकुलेट करते हैं कि हमें दूसरों से क्या मिलता है, बट अभी अभी हमें अपनी अवेयरनेस उस पर शिफ्ट करनी है कि हमें लव रिस्पेक्ट कैसे देना है, हाउ डू वी हैव टू गिव टू अदर्स। We are definitely living in the aware mode, but what are we aware of? We are always conscious of what people give or how they behave with us. हम अवेयर मोड में तो है, बट किस अवेयरनेस में है हम इस अवेयरनेस में है ना कि हमारे हमें लोग क्या दे रहे हैं, हमारे साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। But this awareness is about everybody else, and it is difficult to keep tabs on so many people. If we are sharp enough to catch others' vibrations, it should be much easier to catch our own. We must check what our mental antenna is tuned to, the mode of giving or taking. तो वही सिस्टर शिवानी कह रहे हैं, बट ये जो अवेयरनेस है वो बाकी सबके लिए है। अगर हम यही अवेयरनेस अपने पे शिफ्ट करें, कि हम किस मोड में है, देने के या लेने के। If we adopt the strategy of giving to others unconditionally, life becomes very easy. But when we give to others while seeking their appreciation or anything else in return, our mind keeps checking that if that condition is fulfilled। तो वही सिस्टर शिवानी कहते हैं कि अगर हम दोनों किसी से हर किसी को देने की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करें तो हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। हम सिर्फ देते रहे विदाउट देयर अप्रिशिएशन, हमें कुछ उनसे लेना नहीं है, वी जस्ट वांट टू गिव। इन द प्रोसेस वी आर अनएबल टू शेयर एनीथिंग। We go into the taking mode and keep comparing our efforts with the returns. By following this approach, we block our energies. A child does none of this. वही सिस्टर शिवानी कहते हैं, हम देते भी हैं बट फिर हमें वो एक्सपेक्टेशन भी होती है लेने की, बट बच्चों में ये सब नहीं होता। A child changes as he grows up. He is conditioned by others about good and bad, right and wrong. He learns the blame game and so on.
Bit by bit, his innocence gets covered by acquired layers. Small deposits of negative traits start to obstruct his natural radiance. The child keeps consuming whatever he's fed by his environment. He also acquires the same attitude as his parents. Today, the loss of innocence in children is faster than before because of invasion of media in our lives. There is a flood of information through TV and the internet. Everybody is originally similar, but several layers have accumulated over our being because of these outer influences. Spirituality takes us to reach the child within us again. तो वही सिस्टर शिवानी कहते हैं जब बच्चा छोटा होता है वो प्योर होता है बट एज वो बड़ा होता रहता है वो बाकियों से ना अपनी एनवायरनमेंट से सीखता है गुड थिंग्स राइट एंड रॉन्ग मतलब फिर उसके अंदर वो सारी इनोसेंस जो है लेयर्स से कवर होनी शुरू हो जाती है जो ओरिजिनल नेचर था जब वो अराउंड देखता है अगर देखता है कि एंगर है जेलिसी है उन सब चीजों से उसका जो ओरिजिनल जो लेयर है वो कवर होता रहता है द इनोसेंस गेट्स कवर्ड तो वही है कि द इनोसेंस आजकल क्यों इतना ज्यादा बच्चे छोटे छोटे बच्चों में ये स्ट्रेस और ये सब क्यों हो रहा है बिकॉज मीडिया भी आजकल बहुत ज्यादा फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन है तो वही सिस्टर शिवानी समझा रहे हैं कि हम सबका वही ओरिजिनल नेचर है जिसपे सेवरल लेयर्स अक्यूमुलेट हो गए हैं तो स्पिरिचुअलिटी हमें क्या सिखाता है वही जो हमारा इनर चाइल्ड है जो हमारे ओरिजिनल नेचर है उसमें वापस आना उसको एक्नॉलेज करना उसकी अवेयरनेस में रहना कि हम ओरिजिनली क्या है ओके When it comes to food, we prefer to eat natural and organic. We want our food to be cooked very lightly so that its original nutrients are retained. But as people, we are going away from our originality. We have moved far from originality, but it is not hard to come back. We need not make effort to become a being of love, as that is who we are. We only have to work towards removing criticism, blame, anger, etc. from our being. We created these blockages, so we have to remove them ourselves. तो वही सिस्टर शिवानी कहते हैं कि हम ही ने ये सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हैं हमें ही इसे रिमूव करने हैं ये पूरे चैप्टर का एसेंस था ओके सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडेज सेशन आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छा लगा इसका जो एसेंस यही था कि हमने अपनी ओरिजिनल वैल्यूज़ को निखारना है जो हमारा ओरिजिनल नेचर है So thank you so much for joining all of you.